لال چوک سے جلوس اضحیٰ کی سرکاری اجازت پر شیعہ لیڈران کا رد عمل، کہا جامعہ مسجد کے ممبر و محراب کی خاموشی کے بیچ عزاداری جلوس کی اجازت کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ نوکریوں سے متعلق سی آئی ڈی کلیئرنس کے سرکار کے فیصلے پر سیاسی جماعتیں برہم، پی ڈی پی نے کہا فیصلے سے دلی کی دوری نہ دل کی دوری ہو جائے ختم، اپنی پارٹی نے بھی فیصلے پر نظر ثانی کا کیا مطالبہ۔ اور ڈی جی پولیس دلباغ سنگھ نے کشتواڑ صورتحال کا لیا ہوائی جائزہ، ملبے سے 19 افراد کی تلاش مسلسل جاری، کہا پولیس اور سول انتظامیہ کی بچاؤ کارروائیوں کے تحت کوششیں جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گراؤنڈ رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کے ساتھ سری نگر کے اسٹوڈیو سے براہ راست۔ تو سب سے پہلے بات جموں کشمیر کے اندر اس فیصلے کی جو صوبائی انتظامیہ یعنی کشمیر انتظامیہ نے اٹھایا، اور فیصلہ عزاداری کے جلوس اور خاص طور پر جو 10 محرم کا جلوس آزاد تھا لال چوک سے برآمد کرنا، اس پر سرکار کی جانب سے اجازت ملی ہے۔ لیکن جو ہی سرکار کی جانب سے اجازت ملی، اس کے بعد متعدد شیعہ لیڈران اور شیعہ سکالروں کی جانب سے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے متعدد لیڈران کی جانب سے جو رد عمل ظاہر کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکار کی جانب سے جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ ٹھیک اس وقت لیا گیا جب جموں کشمیر کے اندر ابھی بھی کووڈ ہے، اور کووڈ کے ساتھ ساتھ جو پروٹوکول دیا گیا ہے اس کے بیچ یہ فیصلہ لیا گیا۔ یاترا بھی کینسل کی گئی، عید کی نمازیں بھی اجتماعی طور پر کینسل کی گئی ہے، جامع مسجد کے ممبر و مینار ابھی بھی خاموش ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی کا ماننا ہے کہ جامع مسجد کا محراب خاموش ہے، میلاد کے جلوس سے بھی پابندی ہٹا دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ مفتی اعظم ہو اور میر وائز جس طرح اس سے پہلے بھی انہوں نے شیعہ اور سنیوں کے درمیان اتحاد کو لے کر رول نبھایا ہے، آئندہ بھی ویسا رول وہ ادا کرے۔ اور سرکار اور خاص طور پر جب لال چوک کے ان جلوس آزاد پر آج 30 سال تک یہاں پابندی رہی، اور اس کے بعد جب سرکار کی جانب سے یہ پابندی ہٹا دی گئی، تو آغا سید حسن کا ماننا ہے کہ یہ تذبذب عوام میں نہیں ہے بلکہ سرکار کے اندر ہے، اور مسلمانوں کے اندر اعتماد ہے، بھلے ہی وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اور جو لوگ اسے سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ آغا سید حسن الموسوی الصفی نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو یہ جامعہ مسجد کا محراب خاموش ہے تو اس پابندی کو بھی ہٹائیے، میلاد النبی کے جلوس کو بھی اٹھائیے، اور جو روٹ اس روزہ عاشوراء کے جلوس ہے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اسی کے خلاف ہم نے آواز کی، اور دوسرے ہم نے سبوں کو اپیل کی ہے، جناب امیر غازی کشمیر مولوی عمر فاروق صاحب سے، مفتی اعظم ناصر الاسلام سے، اگر پابندی اٹھنے کی صورت میں جس طرح پچھلے سالوں سے آپ اپنا حصہ ان جلوسوں کے سلسلے میں ادا کرتے تھے، وہ رول آج بھی ادا کرے۔ عامت المسلمین کو بھی ہم نے اپیل کی ہے او پیز کے ساتھ ساتھ اس مجلس جلوس اضحیٰ میں شرکت کریں، اور بھرپور طریقے سے عقیدت کے ساتھ اپنا مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ جس طرح آپ کرتے آئے اس کی اپیل کی ہے۔ ہم نے مخالفت نہیں کی ہے، گورنمنٹ تذبذب میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بات کر رہے تھے، اور آپ نے خود بھی سنا کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ انجمن شرعی شیعہ کے صدر بھی ہیں، اور جو شیعہ کے اندر ایک بڑا فیکشن ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن آغا سعید ہادی جو کہ شیعوں کے اندر ایک بڑے سکالر کے طور پر بھی انہیں جانا جاتا ہے، اور ان کی معروفیت بہت زیادہ شیعوں کے اندر تصور کی جاتی ہے، انہوں نے بھی گلستان نیوز کے ساتھ بات کی، اور بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے امرناتھ یاترا
को मुलतवी किया गया। ईद की नमाजें नहीं हुई हैं और उसके साथ साथ जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर अभी भी इज्तिमाई तौर पर नमाज नहीं हो रही है। और इसका ये भी कहना है कि इन फैसलों के बीच 10 मुहर्रम के जो जुलूस आज़ा है लाल चौक से बरामद करने का फैसला उन्हें अजीब लगता है। इसके पीछे क्या होगा या सियासी व दूसरे मंसूबे होंगे वो वक्त फैसला करेगा, ये आगा सईद हादी का मानना है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले को वो किसी कम्युनिटी के लिए किसी हमदर्दी के तौर पर भी नहीं देख रहे हैं। आगा सईद हादी ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो जैसा कि मैंने भी ट्वीट में भी वो मेंशन किया है कि जब हम देखते हैं अभी न जामा मस्जिद में कोई जुमा की नमाज पे जो है पाबंदियां अभी आयद हैं, रिसेंटली जो ईद हुई है उस पर भी कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी यानी रियासती हवाले से जो हमारी बड़ी एक फंक्शन होती थी हिंदू बरादरान की, वो आते थे अमरनाथ यात्रा के लिए, उसको भी कोविड की वजह से ही अब फिलहाल ये देखेंगे कि बंद किया गया। और जब इतना सारा हो रहा है और अभी कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये पाबंदियां आयद हैं, तो अचानक एक ऐसा फैसला हुआ है कि जी मुहर्रम का जुलूस जो है उस पर जो पाबंदियां अभी तकरीबन 30 साल से आयद थी वो हटाई जा रही हैं, और 10 मुहर्रम और 8 मुहर्रम और दूसरे जुलूस जो है मेन सिटी से गुजर रहे थे उनको रूट थोड़े चेंज करके उनको इजाज़त दी जाती है। लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा बहुत गौर करें तो ये अजीब सा फैसला है। अगर इससे छोटे जो इज्तिमात दीनी या मजहबी इज्तिमात होते हैं, अगर उन पे अभी पाबंदी आयद है तो क्यों इसको मसलन एक ख़ास कम्युनिटी को ऐसी इजाज़त दी जा रही है कि आप अपने जो है वो आशुरा के मरासिम मनाएं। तो मैं खुद अपनी ये राय कहूँगा, मैं इसमें ज़रा खुश फहम ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि ये एक जो शायद बाज़ी लोग इसे ऐसा समझे कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या मंसूबे होंगे सियासी और दूसरे तरीके से वो वक्त आने पर वो आया होंगे। लेकिन मैं इसको कोई किसी कम्युनिटी के साथ कोई हमदर्दी और इसके तनाजुर में नहीं देखता हूँ। अगर ऐसा करना है तो पहले वो दूसरे जो हमारे बरादरान हैं या मसलन दीनी लिहाज से, तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये अचानक पाबंदी उठाना ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई मंसूबा ही है। आगा सईद हादी बात कर रहे थे, इसके पीछे इस फैसले के पीछे क्या सियासी मकासद हो सकते हैं ये उनका कहना है, वो वक्त फैसला करेगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नौकरियों के हवाले से, क्योंकि सरकार की जानिब से जो हाल ही में फैसला लिया गया है कि जब भी किसी को नौकरी के लिए अप्लाई करना होगा या जिसकी भी कोई रिक्रूटमेंट हो जाएगी या किसकी सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि उन्हें CID की क्लियरेंस होनी चाहिए कि कहीं वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल ना हो और ख़ासतौर पर स्टोन पेल्टिंग का मुर्तकिब ना हो। तो इस तरह से सरकार ने बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी किया है और उस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि ऐसे अफराद को पासपोर्ट की सहूलियत से भी महरूम रखा जाए। और जब ये फैसला आ गया उस पर अब सियासी पार्टियां बरहम हो गई है। PDP के जनरल सेक्रेटरी और साबिका वजीर गुलाम नबी लोन हाजुरा की इस हवाले से रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने कहा कि अगर किसी नौजवान ने एक बार ही गलती की है तो उसका मतलब ये नहीं कि उससे पासपोर्ट और नौकरियों से बेदखल किया जाए और उन्हें यह सहूलियत फराहम नहीं की जाए, बल्कि उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों की एक बार गलती हुई है और उसके बाद वो कौमी दायरे में आ गए, मेन स्ट्रीम में आ गए, तो उन्हें कम से कम उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। गुलाम नबी लोन हाजुरा ने एक खास बात कही है कि ऑल पार्टीज मीटिंग में जब दिल्ली में जम्मू कश्मीर की जमातें मौजूद थी तो वजीर आजम साहब ने उन्हें मुखातिब होते हुए कहा कि कोशिश की जाएगी कि दिल की दूरी भी दूर हो और दिल्ली की दूरी भी दूर हो। और हाजुरा का मानना है कि इस फैसले से ना ही दिल्ली नजदीक आ सकती है और ना ही दिलों के करीब आया जा सकता है। हाजुरा ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कभी एक बार उसको गलती हो गई, मेन स्ट्रीम में आ गया और आज पढ़ाई कर रहा है, आज उसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अब नौकरी की तलाश में है, तो आज उसको ये कहा जाएगा कि एक बार आपने पत्थर उठाया और उसकी सज़ा उसको ये दी जाए कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादती है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। मैं वही कहता हूँ, ऑल पार्टीज मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि मैं दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम करना चाहता हूं, और दिल की दूरियां तो यही कम हो जाती है ना जब हम अपने ही बच्चों के खिलाफ ये ऐसा कानून लाएं कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा,
تو اس سے دل کی دوریاں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دل کی دوریاں کم ہو جائیں گی یا زیادہ ہو جائیں گی. ادھر سینئر سیاسی لیڈر اور اپنی پارٹی کے لیڈر منتظر محی الدین کی جانب سے بھی اس فیصلے پر رد عمل آیا ہے اور انہوں نے بھی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے کیونکہ اس سے جموں کشمیر کی ایک بڑی آبادی کو اور خاص طور پر پڑھے لکھے نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے. حکومت کی طرف سے جو ایک حکم نامہ آیا ہے کہ جو بھی لوگ جو بھی جوان وادی کشمیر سے سٹون پیلٹنگ یا کسی بھی الزام میں رہے ہیں تو ان کو نہ سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی نہ ان کے حق میں کوئی پاسپورٹ دیا جائے گا. اگر وہ باہر کے ملکوں میں جانا چاہیں گے روزگار کمانے کے سلسلے میں تو ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے جہاں ہمیں آئینی گارنٹی ہے اپنے حقوق کی جمہوری اقدار کی قدروں کی اس ملک میں روز بروز ایسے احکامات جاری کرنا انتقام گیری کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ آرڈر حکومت کی طرف سے جو آیا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف جو آیا ہے بالکل غلط آرڈر ہے. نہ اس کی کوئی قانونی جوازت ہے نہ آئینی جوازت ہے نہ جمہوری جوازت ہے. اتنے بڑے جمہوری ملک میں رہنے کے باوجود کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہمارے حقوق کو سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جبکہ تواریخ گواہ ہے ہماری ہسٹری گواہ ہے جب ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑا ہمارے قائدین نے ہمارے اسلاف نے تو اس زمانے سے لے کے ایک روش ہے ایک قانون ہے کہ اگر کوئی کسی غلطی کا مرتکب ہو جائے اس کو دوبارہ سنورنے کا موقع دیا جانا ہے. منتظر محی الدین بات کر رہے تھے اور اس سرکار کے اس فیصلے کو غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دے رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ انگریزوں کے دور میں بھی اس طرح کے فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں. بات کرتے ہیں کشتواڑ کی کیونکہ کشتواڑ کے اندر مسلسل جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو وہاں سیلاب آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں لگ بھگ 7 افراد یہاں پر مارے جا چکے ہیں لیکن 19 افراد ابھی بھی مسنگ ہے. ان کے بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن یہاں پر انہیں بازیاب کرنے کے لیے بچاؤ کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک بھی کسی کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا ہے. اس حوالے سے جہاں SDRF NDRF جموں کشمیر پولیس سول سوسائٹی مقامی لوگ اور سول ایڈمنسٹریشن بھی یہاں پر جٹی ہوئی ہے تاہم اس کے باوجود بھی یہاں پر کوئی بھی جو ہے ان افراد کے حوالے سے جو لاپتہ ہے ان کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں مل رہی ہے. اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج DGP جموں کشمیر دلباغ سنگھ نے مذکورہ علاقے کا دورہ کیا. حالانکہ وہاں پر وہ اپنا ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں کر پائے کیونکہ اس ایریا کی جیوگرافی ویسی ہے کہ وہاں پر لینڈ کر پانا بہت مشکل ہے. اس طرح سے دلباغ سنگھ نے ہوائی دورہ کر کے صورتحال کا وہاں پر جائزہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہاں پر ڈائریکشنز بھی پاس کیے. بلاخر کشتواڑ ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی میجرز لیے جا رہے ہیں اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو افراد ابھی بازیاب نہیں ہوئے ہیں ان کی تلاش جاری رکھی جائے اور انہیں بچاؤ کارروائی کے تحت انہیں جو ہے تلاش کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی پاسبل تھا اس ایریا میں جہاں پر ابھی سڑکیں نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو کوششیں کی گئی ہیں جس کے تحت 7 ڈیڈ باڈیز کو ابھی تک وہاں ریکور کیا گیا ہے نکالا گیا ہے وہ جموں کشمیر پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی مشترکہ کارروائی تھی. DGP پولیس نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں. وہاں پر وہ فٹ کری گئی میڈیکل سویدھا جو وہاں پر دینے کی ضرورت تھی وہ کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریہیبلیٹیشن کا اوورآل کام ہے اس میں تو ضرور تھوڑا بہت کو ٹائم لگتا ہے مگر جو پولیس اور فورسز کی طرف سے مدد امیڈیٹ ضرورت تھی وہ امیڈیٹ مہیا کی گئی اور سول ایڈم کی طرف سے جو ان کے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اب جو لوگوں کا نقصان ہوا جان کا مال کا اس کے لیے آرڈرز پہلے ہی پاس ہو چکے ہیں. اس حال میں 17 لوگوں کا زندہ اگر بچا لیا جانا اور پھر ان کو مدد پہنچانا ان میں سے جن لوگوں کو ویکویٹ کرنا تھا اور میڈیکل ہیلپ کے لیے ان کو ویکویٹ کرنا شروع میں 7 ڈیڈ باڈیز جو اس وقت تلاش کر پائے ایفرٹ کے ساتھ ان کو تلاش کر پانا یہ بہت بڑی ایفرٹ کے ساتھ ہوا ہے. ابھی کیونکہ یہ اس سکیل پہ ملبہ اتھل پتھل ہوا ہے جمع ہوا ہے اور جو پانی کا فلو بہت دور تک چلتا ہے ڈیڈ باڈیز ممکن ہے کہ کچھ واش وے ہوگی ہوں
मुमकिन है कोई डेड बॉडीज नीचे दफन हो बहुत बड़े मलबे के, क्योंकि इस एरिया में सड़क की सुविधा नहीं है। इस एरिया में सड़क की सुविधा नहीं है, दिलबाग सिंह का ये कहना है। आज तक जितनी सरकारें आई हैं शायद अभी तक यहाँ उनकी नज़र नहीं पड़ी है, और यही वजह है कि इन बदनसीबों के लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए अभी तक सड़क की सहूलियात मैसर नहीं हुई है। कई बार जो डेमोक्रेटिक सरकार यहाँ पर आई है उनकी जानिब से भी इस इलाके के साथ लग रहा है कि नाइंसाफी हुई है, और उसके बाद कई बार गवर्नर राज भी आया है, बड़े बड़े गवर्नर जम्मू कश्मीर ने देखे हैं, लेकिन सड़क राब्ता इस इलाके की तरफ नहीं बना पाए हैं। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं है। अजय शान इस वक्त हमारे साथ किश्तवाड़ से बराह रास्त है। अजय, जानना चाहेंगे कि आज दिलबाग सिंह ने उस इलाके का दौरा किया, हवाई दौरा करना पड़ा क्योंकि सड़क राब्ता नहीं था, तो क्या आज तक इस इलाके को इतना पसपुश डाला गया है कि यहाँ पर अभी तक सड़क राब्ता भी नहीं है? क्योंकि जो बचाव कार्रवाई वहाँ पर जारी है, जहाँ पर जेसीबी की जरूरत थी वहाँ पर बेलचू से काम लिया जा रहा है, जहाँ पर मशीनरी की जरूरत थी वहाँ पर हाथों से काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हिलाल, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है करीब 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और बड़ी कम रोड कनेक्टिविटी इसमें है। कई इसमें कारण रहे हैं, पॉलिटिकल कारण भी इसमें रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि उस एरिया की तरफ क्या किसी की नजर नहीं गई? नजर तो सबकी गई है, लेकिन गई है उनके वोटों पे। जो उनकी सहूलियत थी, जो उनकी दिक्कतें थी, उस तरफ किसी की नजर नहीं गई है, और जिस वजह से ये जो इलाका है कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी से महरूम रहा है। एक स्टेशन आता है डंगडूरू जहां पर पकल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहां से आगे अभी भी सड़क नहीं जा रही है। मड़वा, वाड़वन, दक्षिण 3 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ से हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद हजारों का वोट वहां से पार्टियों को मिलता रहा है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद उस इलाके में बेसिक कम्युनिटीज की काफी किल्लत है, खासकर जो रोड कनेक्टिविटी है, और जिसका खमियाजा आज होंजड़ गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर थोड़ी सी सड़क और बनी होती तो शायद वहां पर आज की तस्वीर बदली जरूर नजर आती, लेकिन जिस तरह से सड़क नहीं है उसके चलते वहां पर करप्शन का रेट सबसे हाई है, चाहे सीडीएफ की फंडिंग हो या सरकारी स्कीम्स की फंडिंग हो, वहां पर उस तरह के काम नजर नहीं आते। एक हब बनी हुई है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है तो करप्शन की हब बनी हुई है, लेकिन जो बदकिस्मती यह है कि लोगों के ने बार बार आवाज उठाई लेकिन इनकी सुनता कोई नहीं, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हो या जो दूसरी प्रेसिडेंट रूल में बनी हो या गवर्नर रूल में। जी हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान पूरी तफसीलात और जानकारी देने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि इलाके के लोग लग रहा है कि काफ़ी बदनसीब हैं, क्योंकि दिल आजुर्दा हो जाता है जब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जहां पर मशीनों से काम होना चाहिए, एक सड़क न होने की वजह से अब ये काम हाथों से करना पड़ता है। जहां गाड़ी जानी चाहिए थी वहां पर हवाई सफ़र करना पड़ता था, जहां किसी जगह पर रुककर जायज़ा लेना चाहिए था वहां पर हवाई सफ़र करके आसमानी जायज़ा लिया जाता है, जो कभी भी मुतरादिब नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता उस जायजे के जो ग्राउंड पर लिया जा सकता है। और वो लोग कितने दुखी अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, वो लोग कितने अपने आप को सेपरेट और इलाहिदा आइसोलेट तस्वीर कर रहे होंगे, जो देखते होंगे कि अभी भी उनके अजीज़ व अकारिब जिनकी तादाद लगभग 19 है उन्हें बाजियाब नहीं किया गया है। वक्त की सरकारों को इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है, और वक्त की सरकारों ने ही इन्हें आज तक फरामोश किया है। लेकिन उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, कि अब इस इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगी। अगली खबर में बात करेंगे यूसमर्ग की। एक सेहत अफजा मकाम यूसमर्ग, और इसकी हिस्ट्री भी है, और इस हिस्ट्री के बावजूद भी इस इलाके को काफ़ी पसपुश डाला गया है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है सयाहत का, रोज़गार का भी, लेकिन मकामी लोग यही कहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दी गई है। आज गवर्नर के एडवाइज़र बसीर अहमद खान ने इस इलाके का दौरा किया, वहाँ पर जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी बात की, लोगों के साथ भी बात की, जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी बात की, उनके मसाइल सुने। बाज़ाब्ता दरबार यहाँ पर सजा हुआ था, और इस दरबार में लोगों ने अपने अपने मसाइल रखे, और जो कोठे वाले हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पर मसाइल रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक जितने भी मुतालबात किए थे वो पूरे नहीं हुए। न सिर्फ इतना, बल्कि इनका ये भी कहना है कि इस इलाके में नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क के साथ साथ जो 600 लाइसेंस होल्डर्स यहाँ पर है उन्हें कोई रिलीफ भी नहीं दी गई है, सिर्फ 200 को दी गई है। एटीएम यहाँ पर होना चाहिए था, इस बड़े सेहत अफजा मकाम जिसकी बड़ी तारीख है, यहाँ पर एटीएम भी नहीं है। तो भी सहूलियात का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर यहाँ पर कोई बीमार भी हो जाए, चाहे वो सयाह हो या मकामी लोग हो, तो उन्हें चार शरीफ ले जाना पड़ता है। मकामी लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपकी नजर है।
यम कोट वल बिचार वोथ वसान ये रूद लागान वोथ वसान इन कह दिवान ये कोट शेरने पे लासन हूं लासन 6 यवतन मज 2 हथन रिलीफ तोलमुत 4 हथन तोल कहें यह गो मुतालबा हल ग कोटन हूं सड़क ये कृष्णवाड़ तक 2 किलोमीटर यह गल हल क्या पब्लिक डिमांड ये खास कर नेटवर्क कहें एटीएम कहें अगर बेमार गह मोज ये दवा फुल बना कुन यह गो मसला हल गम यह गो कर मुतालबा सन पर जोर गुजारिश करें मंजूर अल्लाह ताला का ठाइस। नाज़रीन, अक्सर बेशतर हमने देखा कि जो सरकारी अफसरान कहते हैं या मिनिस्टर साहिबान जो कहते हैं, जो वक्त की हुकूमतें कहते हैं, वो ज़मीनी स्तर पर मिनो-अन नहीं हो पाता है। आपको याद होगा कि साल 2008 में डेंटल सर्जन्स की जो रिक्रूटमेंट थी वो साल 2008 में हुई थी। तब से लगभग 13 साल बीत गए हैं और 13 सालों के दौरान बहुत सारे डेंटल सर्जन्स या जो बाकी डॉक्टर साहिबान हैं वो रिटायर भी हुए होंगे, वैकेंसीज भी पड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ जिला, तहसील और हर गांव मोहल्ले स्तर पर पीएचसीज भी इस वक्त की सरकारों ने यहाँ पर कायम किए और उसके लिए ये भी क्राइटेरिया रखा गया है कि हर पीएचसी में एक डेंटल होना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है और अजीब बात ये है कि साल 2008 के बाद इन डेंटल सर्जन्स की कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है। तो इस हवाले से यहाँ पर तकरीबन आज की डेट तक 7000 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी डिग्रियां लिए हुए हैं, डिग्रियां उन्होंने खत्म की हुई हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। एक तो उन्हें जॉब नहीं मिल रही है और दूसरा यह है कि सरकार के अंदर वैकेंसीज है, हॉस्पिटल के अंदर वैकेंसीज है। जब हम रेशो देखते हैं तो अर्बन एरियाज में तकरीबन हर 10,000 में एक डेंटल सर्जन होना चाहिए और रूरल एरियाज में हर 13,000 आबादी में एक डेंटल सर्जन होना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स जमीन स्तर पर देखा जा रहा है। अर्बन एरिया में हर 30,000 के बाद एक डेंटल सर्जन है और आबादी के ही लिहाज से जब हम देखते हैं रूरल एरियाज में तो वहां 40,000 की आबादी में एक डॉक्टर है। तो इस तरह से ये अवाम के साथ भी नाइंसाफी है और ऐसे उम्मीदवारों के साथ भी नाइंसाफी है, क्योंकि आज इन्होंने श्रीनगर के डेंटल कॉलेज के बाहर एहतजाज किया। इससे पहले भी उन्होंने कई बार एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने अपने मुतालबात हुकाम तक पहुंचाए और उन्हें रोजगार तो मांग रहे थे, लेकिन रोजगार के साथ साथ इनकी सर्विसेज भी अभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इन एस्पिरेंट्स ने आज मजीद क्या कहा, इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद खान के साथ। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इन लोगों ने यहाँ पर एहतजाज किया, एहतजाज के दौरान मजीद उन्होंने क्या कहा, क्योंकि इनकी डिमांड्स बहुत हद तक सही भी लग रही हैं, दुरुस्त भी लग रही है और उन्हें रिक्रूट करने के हवाले से जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो आबादी के तनासुब से, आबादी के रेशो से भी हम देख रहे हैं कि अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए हिलाल, उनकी जो प्रोटेस्ट था, आज प्रोटेस्ट में जब उन्होंने हमसे बात किया तो वो उनकी एक मैसेज नहीं बल्कि एक, हम कहें तो एक इमोशनल मैसेज सरकार के लिए था। साल 2008 से लेकर अभी तक उन्होंने कहा कि 2 से 3 चीफ मिनिस्टर बदले, 2 गवर्नर बदले, 1 से 3 हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले, स्टेट यूनियन टेरिटरी में बदला, मगर इन बच्चों के हालात अभी भी वैसे ही है जैसे 2008 में थे। यानी 2008 में भी ये सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और 2021 में भी ये सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना था कि जब 2019 में एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद जब सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, उसमें कहा गया था कि युवाओं के लिए कुछ अलग करेंगे, युवाओं की उम्मीदें आसमान पर पहुंचाएंगे, लेकिन उम्मीदें तो आसमान पर पहुंची मगर युवा अभी भी सड़कों के किनारे खड़े नारेबाजी करने में बैठे हुए हैं। स्किल इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर के बच्चों को बड़े से बड़े टेक्निकल प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है, लेकिन जो स्किल्ड जम्मू कश्मीर का युवा है, जिन्होंने नीट और सीईटी को अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करके बीडीएस को चुना, एमडीएस को चुना, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यानी सरकारी कॉलेज में पढ़कर, सरकारी क्वालिफिकेशन हासिल करके भी सरकारी नौकरी से महरूम ये बच्चे अब दर दर अमजद, जब हम देखते हैं कि सरकार का जो रेशो क्या है, हर किसी पीएचसी में डेंटल होना चाहिए और उसके साथ साथ 13 साल बीत गए और 13 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, बल्कि 13 सालों में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी पोस्टें खाली हुई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर भी हुए हैं। तो सरकार जिनके लिए पहले ही फाइनेंशियल कंसेंट मिली हुई थी, यानी जो वैकेंसीज थी, उनके लिए भी कोई प्रोग्राम नहीं है सरकार के पास। तो क्या लोग ये भी नहीं कहते हैं कि ये जो डेंटिस्ट के हवाले से जो डेंटल सर्विसेज आम लोगों को चाहिए वो आवाम के साथ नाइंसाफी है? की बात करते हैं तो हर डिपार्टमेंट में जब रिक्रूटमेंट होती
की है तो उससे पहले एक पूरा प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से किस साल कितनी रिक्रूटमेंट्स होनी है, कितनी रिटायरमेंट्स होनी है, कितनी वैकेंसीज खुलनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस डिपार्टमेंट में यूं लग रहा है कि साल 2008 से अभी तक कोई रिटायरमेंट ही शायद ना हुई है, जिसकी वजह से कोई नई वैकेंसी क्रिएट नहीं हो रही है। अगर हम लोग बात करें लोगों के साथ नाइंसाफी की, तो अगर हम लोग जब सेंसस को देखते हैं हिलाल, तो ये मालूम पड़ता है कि अर्बन एरियाज में 10,000 लोगों पर एक डेंटल सर्जन होना चाहिए। पर जब हम देखते हैं अवाम के साथ भी नाइंसाफी है और ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ भी ये नाइंसाफी है, क्योंकि उन्होंने डिग्रियां मुकम्मल की हुई हैं और डिग्रियों के बाद इन्हें रोजगार तो मिलना चाहिए था, वो भी इनका हक है, और साथ ही साथ जो पब्लिक को सर्विसेज इनकी मिलनी चाहिए थी, वो भी जब हम देखते हैं आबादी के तनासुब से, आबादी के रेशो से, तो वो आबादी के साथ भी नाइंसाफी है। और इसी नाइंसाफी को लेकर आज जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जो SI है, यानी सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स है, उनकी जानिब से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था तब उनकी उम्र जो थी वो इस काबिल थी कि वो फॉर्म दाखिल कर पाए, यानी अंडर एज थे, लेकिन बाद में उनका मानना है कि इस प्रोसेस को चलने में काफी वक्त बीत गया और आज उन्हें कहा जा रहा है कि आप इंटरव्यू या इम्तिहानात नहीं दे सकते हैं, यानी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपकी एज मुकर्रर एज को पार कर गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने आज मुतालबा किया है कि अगर जो सरकारी स्तर पर डिले हुआ है तो उसका नुकसान या खमियाजा ऐसे एस्पिरेंट्स को नहीं उठाना चाहिए, और इस हवाले से उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें एज में रियायत दी जाए। सर हम यही अपील करना चाहते हैं मीडिया के थ्रू कि हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए 21 से 35 तक सर। तो काफ़ी बच्चे हैं सर, 50,000 से ऊपर हैं जो एज सर ओवर एज हो चुके हैं सर। तो हमारी सर गवर्नर से यही रिक्वेस्ट है कि हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये एस्पिरेंट्स आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कर रहे थे और उनका मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और सरकार से वो मुतालबा कर रहे थे कि एज को लेकर, क्योंकि उन्होंने इससे पहले पूरी प्रिपरेशन की हुई थी, तो एज को लेकर कम से कम उन्हें रिलीफ दिया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें वो रिलीफ नहीं मिला है। वैसे अगली खबर में हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से कोविड हुआ और कोविड के बाद लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के अंदर हर किसी तबके को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान के बीच भी जब आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान ट्रांसपोर्टर्स को हुआ है, क्योंकि यूजुअली जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये प्रोसेस हमने देखा कि यहाँ पर ज्यादातर गाड़ियां लोन पे ली हुई है, कर्जे पे ली हुई होती है, और सरकार की जानिब से ऐसे लोगों के लिए कोई रियायत अभी तक नहीं दी गई है। तो इसको लेकर आज जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स की या ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट TS वजीर की जानिब से 10 दिन की वार्निंग दी गई है, यानी 10 दिन की मोहलत सरकार को दी गई है कि एक तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और उसके साथ साथ जो उन्हें गाड़ियां ली हुई हैं वो लोन पर ली हुई है और इसकी किस्तें भी वो अदा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कोई रिलीफ मिलना चाहिए। आशा सरवाल जम्मू से इस वक्त हमारे साथ है। आशा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से और क्या क्या मुतालबात रखे गए हैं जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और सरकार को 10 दिन की मोहलत दी है। देखिए हिलाल, जिस तरह की गई है इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्योंकि जब कोरोना काल शुरू हुआ था उस वक्त से लगातार ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। बार बार पूरे गुहार भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इन लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया था। उन्होंने राज्यपाल से बातचीत करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि पहले भी जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स जो है वो हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए थे और आज फिर से TS सिंहदेव की अगर बात करें, जो कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो पूरी तरह से बात करते हुए नजर आए हैं कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो वो उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आज आप देखिए, पहले की वो बात कर रहे थे कि 82 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पर डीजल जो है वो बिका करता था, लेकिन उसका भी आज की में अगर देखा जाए 95 रुपए वो प्रति लीटर पहुंच चुका है और पेट्रोल की बात करें तो वो 100 के पार है। तो जाहिर तरीके से ट्रांसपोर्टर्स जो है वो काफी परेशान है, गाड़ियां रुकी हुई हैं, कई लोगों को अपना लोन देना है, लोन की किस्त अदा करनी है, पैसेंजर टैक्स को लेकर वो बात करते हुए नजर आए, उसके साथ ही फेयर को लेकर वो बात कर रहे थे। जब हम भी देख रहे हैं कि कोविड काल के दौरान जो यहाँ पर डैमेज हुआ है, हालांकि न सिर्फ पूरी कंट्री के अंदर हुआ बल्कि दुनिया भर में हुआ है, लेकिन दुनिया भर की सरकारों ने अपने
कौम को, अपने लोगों को इस हवाले से कंपनसेट भी किया है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ देखते हैं तो 5 किलो चावल के बगैर अभी तक यहाँ के लोगों को कुछ नसीब नहीं हुआ है। यही वजह है कि वो अब 10 दिन की मोहलत भी दे रहे हैं। देखिए 10 दिन की मोहलत उन्होंने इसलिए दी है कि उपराज्यपाल से वो बार बार कह रहे हैं कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालिए और हम हमारे साथ बात कीजिए, क्योंकि वो जो बात कहना चाहते हैं वो आमने सामने बैठकर कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि बिचौलियों को बीच में से हटाइए और डायरेक्टली ट्रांसपोर्टर्स के साथ यहाँ पर बात कीजिए और सुनिए कि उन्हें क्या समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि उपराज्यपाल लगातार हर शख्स से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उनके ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया जाता है, उस पर बात होती है, उस पर हल करने की कोशिश होती है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को लेकर अभी तक कोई भी मंथन जो है वो नहीं हुआ है। पहले यहाँ पर 50% सवारियों के साथ गाड़ियों को चलाने की बात तो कही गई थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि अगर हम अपनी गाड़ियों को रास्ते पर उतारते हैं तो फायदा क्या। बिल्कुल आशा, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर्स की ग्रीवेंसेस है दम भी है और किसी हद तक जायज़ भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य ट्रांसपोर्टर्स ने आज एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें उनका ये भी मुतालबा था कि जो दरमियानादार लोग हैं, जो मिडिल मैन है, उनको हटा दिया जाए, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बराह रास्त उनके साथ बात करें और उसके बाद जो उनकी ग्रीवेंसेज हैं वो गवर्नर साहब की नोटिस में वो लाएंगे। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। कुछ ना बोले तो फूफड़ के मौसा के बेटे के रिश्ते को मना करने का टू मच प्रेशर। प्रेशर हटाओ, शादी.com पे आओ, आज ही रजिस्टर कीजिए। डिग्री मिलेगी क्या पता, मिलेगी और वो काम की होगी, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज ऑनलाइन। upgrad.com। देखो कैसी सुर का बहुत ही कच्चा है, मिट्टी है हवाओं में, पर लड़का अच्छा है। जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। This program is sponsored by City University, approved by UGC. स्पॉन्सर्ड बाय जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करें। मूव टू अब्रॉड के साथ कॉल करें 95393 95393।